This is NDTV. And you're watching NDTV Hindu. And you're watching Late Night News with me, Ashmit Kumar, and today we see the finale of the Commonwealth Games. The action that we've seen in the past few days all comes to a close today, and it's a celebration today in Delhi. It's a celebration throughout the country, and for more on that, we now go across to our network channel NEWS-NDTV-HINDU-141010-1. शायद भारत को कभी गोल्ड मेडल पहले नहीं मिला था. आगे मिलेगा जरूर. आगे मिलेगा जरूर. So Samota ji, thank you so much for being with us. And then somebody who was with us in the big fight last week, गीता कुमारी, धन्यवाद. अब हमारे साथ फिर से हैं. गोल्ड मेडल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. और आपके साथ हैं आपकी बहन बबीता. आपको सिल्वर मेडल मिला. हम लोग सब आपके साथ एक साथ चीयर कर रहे थे इसी स्टूडियो से जब आपको सिल्वर मेडल मिला. एंड कंटिन्यूइंग टू प्रोसीड डाउन दिस साइड, वन ऑफ द रियल हाई पॉइंट्स ऑफ दीज गेम्स आई हैव टू से, एंड आई वाज देयर एट द स्टेडियम. And I can tell you, I have never ever heard noise like that. जितना crowd ने आपके लिए cheer किया 4x400 meters relay के लिए. Thank you so much. 4x400 meters relay. Manjeet Kaur is with us right here in the studio. Thank you so much for being with us. And next to her, the first ever gold for India in individual athletics in 58 years, Krishna Punia, discus thrower. Many congratulations from all of us. The nation's proud of you. Anurag Singh, you got the gold medal in shooting along with your partner Hina Sidhu, who's also here. Both of you, many congratulations from both of us. Thank you so much for us. Prashant Karmakar, para swimming, 50 meters freestyle. This is the first medal India has ever got in swimming in Commonwealth Games history. And you got it for India. Thank you so much, and many congratulations from all of us. Bambaila Devi, इंडिया का जो प्रदर्शन आर्चरी में था बहुत ही अच्छा था. लोग शायद नहीं समझते थे कि सबको मेडल्स मिलेंगे. बहुत बधाई हमारी तरफ से. एंड सिटिंग नेक्स्ट टू हर योगेश्वर दत्त. 21 wrestlers in the Indian wrestling squad. 19 of them got medals, including 10 gold medals. Yogeshwar Dutt, 60 kilograms freestyle, one of them. Many congratulations. Vijay Kumar Sharma, one of the stars of the Commonwealth Games for India, 3 golds and 1 silver. Yeah. Many congratulations, Vijay, from all of us. Absolutely fantastic. Thank you. Joshna Chenappa, squash player. Now, we didn't get the medals in squash, but absolutely fantastic performance in the way you guys held off a lot of the competition. Medals prospect for the future? Absolutely. Okay, Joshna, thank you so much for being with us. And moving on, we are also being joined by Abhinav Bindra, of course, shooting star. We've known him. He's become one of the heroes already of this nation at the time of the Olympic Games. 1 gold, 1 silver. Abhinav, thank you so much for joining us. And now let me come to you all to find out how difficult or easy it was. क्या आपको समोता जी आपने कहा कि ये पहला सुपर हेवीवेट मेडल है भारत के लिए. क्या और मिलेंगे? और अगर आपको लगता है और मिलेंगे तो उसकी वजह क्या है? देखिए, जैसे अब पटियाला में ट्रेनिंग करते हैं ऐसा ही कंटिन्यू चलता रहा तो हमारे देश के मतलब सुपर हैवी बड़े वेट अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और गोल्ड मेडल ला सकते हैं. अभी एशियन गेम्स होंगे उसमें मेरा ही सिलेक्शन है और मैं मतलब और भी ज़्यादा ट्रेनिंग करना चाहता हूँ पटियाला में और अपने देश के लिए एक और गोल्ड लाना चाहता हूँ. तो जी आपको फाइनल में तो वॉक ओवर मिल गया, पर क्या आपको क्या लगता है जब भारत ने अगर इतना अच्छा किया है, 10 बॉक्सर्स में से 7 को मेडल्स मिले हैं, उसकी वजह क्या थी? होम क्राउड था कि ट्रेनिंग की वजह से, कि उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये है जब 2008 में बीजिंग ओलंपिक में बॉक्सिंग में इतना परफॉर्मेंस अच्छा दिया, मतलब उसमें विजेंद्र ने एक ब्रॉन्ज मेडल जीता. उसके बाद इंडिया में इतना बॉक्सिंग में बहुत इम्प्रूव हुआ. मनोज, क्या आपको लगता है कि क्राउड का सपोर्ट भी काफी बड़ा फैक्टर है? सारी की सारी क्राउड जब चीयर कर रही है आपको उससे एनर्जी मिलती है? रेसलिंग और बॉक्सिंग तो ऐसे एग्रेसिव गेम है, इसमें जितनी मतलब जो भी देसी लड़के हैं हरियाणा के, ज़्यादातर पब्लिक जो शोर मचाती है उतना ज़्यादा क्रोधित होते हैं. अच्छा, ये हरियाणा की बात है क्या? हम लोग भी यही सोच रहे हैं कि सारे बॉक्सर्स रेसलर सबके सब हरियाणा से. हरियाणा में क्या है, क्या
घी दाल घी दही की वजह से है कि कुछ और है? दूध दही का खाना यह है मेरा हरियाणा। दूध दही का खाना यही हमारा हरियाणा। ठीक है। Sanuji, the coach is here also with us. The training, you think it's an important part? Most important part is training. It's planned training. And I think what we all are trying to forget is one the very important aspect of training was the centers of Sports Authority of India. All my boxers and all my medalists, they are the products of the centers of Sports Authority of India. For a sportsman to come up, you need 8 to 10 years of continuous training to come to his peak. And that is what has happened. Besides them, there are many sponsors who have come up which are never there. Now they are sitting there from the Mittal. I think they are the first people who had come up to boxing. Yeah. But now there are many like so Sahara, now their livelihood is taken. See, now these people who were not having even cycles in the camps now have different cars. They have better cars than the coaches now. Oh, they have better facilities than. Well, we are glad to hear that. They deserve it. That is because of government incentives and incentives of these people, sponsors who are coming into boxing. Okay, let me just, before I come to the crowd factor, which I think may have been particularly important for the two of you, I just want to stay on this Haryana factor, the ghee factor, and why is it that we do so well in many of these aggressive sports? Now, Geeta, Babita and Yogeshwar ji. Yogesh ji, आपको क्यों लगता है कि भारत कुश्ती में इतना अच्छा क्यों करने लगा है? कुश्ती में पहले भी अच्छा करता था, अब भी और ज़्यादा और अच्छा करना है, क्योंकि जैसे हरियाणा के लगा लो, हर गांव में अखाड़ा है, हर घर में पहलवान है। हर घर में लगा लो पहलवान जन्म लेता है, अगर वो कुश्ती करेगा तो जरूर पहलवान बनेगा। और अब जो नई बात आई हुआ है जीत की भूख। अब हर एक पहलवान लगा लिया, बॉक्स लगा, किसी भी खिलाड़ी जीत की भूख बढ़ी है, जीतने चाहते हैं। अगर भूख बढ़ेगी आदमी कुछ प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करेगा। पहलवानों को देखा मैंने कैंप में, हमारे जो 4 नंबर पहलवान थे वो पागल हुए थे प्रैक्टिस के लिए। 1 साल से देख रहा हूँ, कहीं भी जाओ बच्चे प्रैक्टिस डंड मारने लग रहे हैं। दूसरे देखा वो रूम में उसने लगा दी। बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की इस टाइम, बहुत सारा ट्रेनिंग। आप दोनों की जो केस स्टडी है, आप क्या 5 बहनें हैं और पांचों की पांचों कुश्ती करती हैं, तो घर में क्या होता है ये मैं जानना चाहता हूँ। ये चलता रहता है, जब से आप छोटे थे यही चलता रहता था? बिल्कुल, हमने 10-12 साल की उम्र में रेसलिंग शुरू की थी। तो घर में मिट्टी के पापा ने घर में ही अखाड़ा खोल दिया मिट्टी में ही। तो उसके बाद चलता रहा प्रैक्टिस का सिलसिला। वो जो छोटे थे उनको भी स्टार्ट बचपन से ही करवा दिया। बबीता, ये कहानी अब हमें बताइए, जब आप छोटी थी क्या होता था? ये आपको पकड़ के जब आप छोटी थी तब से पीटना उन्होंने शुरू कर दिया? नहीं, लड़ाई कभी नहीं हुई। वैसे मैट के ऊपर तो दोनों के दोनों एक दूसरे की ऐसे होते थे कि भाई मेरे को मैं इसको आ रहा हूँ, ये सोचती थी मैं इसको आ रहा हूँ, तो दोनों में बहुत ज़्यादा टक्कर होती थी। मैं पॉइंट ले लेती तो इसको गुस्सा आता कि इसने पॉइंट कैसे ले लिया। अगर ये पॉइंट ले लेती थी तो मेरे को ये होता कि इसने पॉइंट कैसे ले लिया। तो दोनों के बीच मैट पे ज़्यादा होती थी। और आपकी जो बाकी 3 बहनें हैं, गीता जी हमें पिछले हफ्ते भी बता रही थी कि वो भी मेडल जीतने वाली हैं। बिल्कुल, क्योंकि अभी वो कैडेट्स हैं, तो कैडेट्स में उन्होंने एशियन चैम्पियन हैं तीनों, एक बार की तीनों गोल्ड मेडलिस्ट हैं, एक बार तीनों सिल्वर मेडलिस्ट हैं एशिया में। तो अभी उनकी एज छोटी है, जब हम इस सीनियर लेवल तक आएंगे तो वो भी जरूर नाम रोशन करेंगे देश का। Wrestling, in a sense, at least in India, does have a history. There are lots of akhadas in places like Haryana. But how about a sport like shooting? Now, shooting, why should India be doing so well in shooting? And let's not forget the number of medals that India has actually won in shooting. It's by far the single most productive sport for India is shooting. Let's try and get the reason for that. Abhinav Bindra now joining us as well. Abhinav, what do you think the reason is that Indians are so good in shooting? What's the reason? I think we've had a good history, especially in the Commonwealth Games as far as shooting is concerned. We've won a lot of medals in the last 2 editions. I think we are naturally gifted in the sport. I think we generally have good hand-eye coordination, and I think that is one of the reasons why we've been so successful at the highest levels of the sport. Abhinav, but having said that, most people in India would not be able to necessarily even afford the equipment. And where do they get guns from? Where do they go and practice from? How do they get ammunition? Aren't these reasons why you would have thought that India should not be a great shooting nation, but it's turned out to be? Well, I think shooting definitely needs to become a more accessible sport. Once we do that and make the sport more popular at the grassroots level, at the school level, is when we'll really become a force to reckon with, and when we can really compete with China and beat them in many shooting disciplines. Once we start doing that is when we will get more and more success.
Okay, let me just get you in on that. Why shooting? Why is India so good in shooting? well, अब आप देखेंगे कि शूटिंग में हमारी इंडिया की परफॉर्मेंस दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ये 2004 में राठौड़ ने फर्स्ट सिल्वर मेडल लेके आए थे एंड उसके बाद अभी 2008 में अभिनव ने जो ओलंपिक गोल्ड लेके आया है, तो उसके बाद सबका इंटरेस्ट शूटिंग की तरफ बढ़ रहा है और काफ़ी कंपनी आगे आ रही हैं जो स्पोर्ट्समैन को सपोर्ट कर रही हैं और उनको स्पॉन्सरशिप दे रही हैं। तो फ्यूचर ब्राइट है और आप लोगों की मीडिया के जरिए जो इस स्पोर्ट्स की पब्लिसिटी हो रही है एंड नए नए यंगस्टर इसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं और स्पोर्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। अनु? आई थिंक एक लेवल पे पहुंचने के बाद काफ़ी सपोर्ट मिलती है और गवर्नमेंट की तरफ से भी और एंकरेजमेंट काफ़ी मिलता है, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे अभी भी उतना शायद एंकरेजमेंट नहीं है। ग्रास रूट लेवल पे अगर आप देखेंगे, अगर स्टार्टिंग लेवल से बच्चों को, यंगस्टर्स को सिखाने के लिए, तो वहाँ पे भी शायद इतना नहीं है क्योंकि शूटिंग इतना फेमस नहीं है अभी भी। स्कूल्स में अगर आप जाएंगे तो आपको हर जगह फुटबॉल या एथलेटिक ग्राउंड्स मिल जाएगा, लेकिन शूटिंग रेंज हर जगह नहीं मिलेगी शायद। तो आपने शुरुआत कैसे की जब आप शूटर बनना चाहती थी? कैसे शुरुआत की? मेरे तो फैमिली में काफ़ी इंटरेस्ट था, वो उन्होंने सारे गेम्स में मुझे एंकरेज किया, लेकिन मुझे शूटिंग ही पसंद है। समहाउ मेरे फादर काफ़ी इंटरेस्टेड थे शूटिंग में, लेकिन मैं जैसे अलीगढ़ में मैं पैदा हुई हूँ, वहाँ कोई रेंज नहीं थी, तो आई हैव टू कम टू दिल्ली टू स्टार्ट माई ट्रेनिंग एंड डू शूटिंग। Would you both agree with that? At the end of the day, you have to come to a place like Delhi. I come from Punjab, and I wanted to start .22. I realized there is no range in my city, so the nearest one is in Chandigarh, which is closed, and then the nearest one is in Jalandhar, which is 3.5 hours drive. So it's not possible to go and train there every day. So yeah, we do have problem of ranges, and there should be one good proper range in at least one state. विजय, जेनेटिकली कुछ इंडियंस में है कि स्टडी हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो वो निशानेबाजी में अच्छी बात है? या ये कंसंट्रेशन का गेम है, इसमें काफ़ी अपने आप को काम रखना पड़ता है, कंट्रोल रखना पड़ता है। तो हमारे को टाइम पे इंडियन शूटिंग टीम में जब कैंप लगते हैं तो हम मेडिटेशन की एक्सरसाइज करते हैं ताकि हम अपनी शूटिंग को अच्छे लेवल पे अच्छी तरीके से हम परफॉर्म कर सकें। ओके, तो मेरा देवी जी, क्या यही बात आर्चरी में भी है? पर आर्चरी का तो एक तरह से ट्रेडिशन भी भारत में है, खासतौर से ट्राइबल इलाकों में, जहाँ से दीपिका फॉर एग्जांपल जहाँ से आती हैं। हाँ, आर्चरी और शूटिंग में ज़्यादातर सेम है। वो लोग भी, हम लोग भी मेडिटेशन करना पड़ता है सब, और अभी तो जूनियर लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, अभी और आ रहे हैं ट्राइबल लोग यहाँ से। Okay, and let me now turn to two of the most popular areas, and remember, if it's a question of medals, then you've really got to do well in two areas, athletics and aquatics. 100 gold medals, more or less, between the two in the Commonwealth Games. And it's the same in games after games after games. And one of the reasons why India has historically not done very well is it doesn't get medals in these areas. Now, athletics, look at India's performance before this in the Commonwealth Games. In the entire history of the Commonwealth Games, put all the medals together, doesn't add up to 10. This time, India has overtaken that in just one Commonwealth Games. So I think the both of you, just one more round of applause just for that, for what you people have achieved in the field of athletics. Krishna, you were the first person to do it before they then, when I hit the following evening. What do you think the reason is that we did so well this time in Delhi? Was it because a lot of people didn't come, some major, in your case, for example, Danny Samuels didn't come? हाँ, एक डैनी सैमुअल नहीं आई तो उससे हम ये नहीं कह सकते कि कंपटीशन हमारा इजी हो गया था। उसके अलावा न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया नहीं आया, इंग्लैंड से भी लड़की थी, कॉमनवेल्थ चैम्पियन 2 टाइम की है और वर्ल्ड चैम्पियन भी थी। कंपटीशन एज इट इज़ था हमारा। और इसके अलावा जो डिस्कस में इंडिया में जो लेवल है वो एक वर्ल्ड लेवल का ही है, तो हमें पूरा कॉन्फिडेंस था कि हम करेंगे। हालांकि एथलेटिक्स से इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन इतने में हमारे लिए तो और भी मुश्किल हो जाता है, उम्मीद नहीं है। और शुरू में तो जैसे कोई देखने वाले भी स्टेडियम में इतने ज़्यादा नहीं थे तो थोड़ी मायूसी भी होती थी, लेकिन लास्ट में जैसे हमने प्रूव किया तो पॉपुलेशन ने बहुत ज़्यादा साथ दिया हमारा। जिस दिन आपने गोल्ड जीता तो काफ़ी लोग थे स्टेडियम में, बहुत चीयर अप हुआ हमें। लेकिन जैसे इन्होंने बताया कि कंसंट्रेट ज़रूरी है, टेक्निकल इवेंट है हमारा भी एथलेटिक में डिस्कस थ्रो, और आपको एक थ्रो में जैसे प्रूव करना पड़ता है अपने आप को 4-5 साल की मेहनत में। तो उसके साथ उम्मीदें ये थी कि मिल्खा सिंह जी के बाद किसी का गोल्ड मेडल नहीं था, और वीमेंस में तो आज तक कभी हुआ ही नहीं था। तो हम चाहते थे कि इस बार हम ये कर दिखाएं, और एथलेटिक फैमिली में सभी को डिस्कस पे बिलीव था। अदित्य, जिस दिन आपने गोल्ड जीता
उस दिन तो आपका पूरा का पूरा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम बिल्कुल भरा था, 60,000 लोग चिल्ला रहे थे। उन्होंने क्या आपको काफी उत्साहित किया? बिल्कुल किया, क्योंकि हम लोगों का 2006 में सिल्वर मेडल आया था और हम लोगों ने चाहा था कि हमारा जो दिल्ली में एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स हो रही है और हम लोगों को अच्छा प्रदर्शन करना था और सच में हम लोगों ने कुछ कर दिखाया और गोल्ड जीता। उस रेस की अगर आप हमें कहानी सुनाए, हुआ क्या? क्योंकि एक समय लग रहा था जैसे नाइजीरिया की टीम सामने निकल जाएगी। नाइजीरिया की टीम बहुत अच्छी थी और जमाइका वगैरह की टीम काफ़ी अच्छी टीमें थी, लेकिन हम लोगों ने हीट्स दूसरी लड़कियां भागी थी और मैं जैसे 400 मीटर सेमीफाइनल तक पहुंची थी और मुझे ये था कि हमारे कोचेस की प्लानिंग थी कि हम लोग रिकवरी लेके और फाइनल में अच्छा करें और हम लोगों ने मीन्स रेस्ट ली और फाइनल में अपना पूरा जितनी भी जान थी और लगाई और हम लोगों की जो भी हमारी इच्छा थी वो पूरी हुई। और उस दिन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कितने सारे मेडल मिले? आपको मिला मेडल, जैवलिन में मेडल मिला, ट्रिपल जंप में मेडल मिला, 5 मेडल टोटल थे। हाँ, और उस दिन क्राउड ने इतना चिल्लाया कि मेरा हियरिंग अभी भी थोड़ा सुनाई नहीं दे रहा है इस गान से, इतना लोग चिल्ला रहे थे। लेट मी नाउ जस्ट शिफ्ट टू एक्वाटिक्स अ लिटिल बिट एंड प्रशांत, आई एम गोइंग टू कम टू यू। एक्वाटिक्स में भारत को कभी मेडल नहीं मिला, आप पहले थे जिन्होंने मेडल दिलाया भारत को, इसकी वजह क्या है? मुझे लगता है सही प्लानिंग। 4 साल से मैं प्लानिंग किया था, सो अगर सही प्लानिंग किया जाए एंड एवरीवन डूइंग हार्ड वर्क, सब हार्ड वर्क करते हैं लेकिन स्मार्ट वर्क करना चाहिए। क्योंकि आप लोग सब बोल रहे हैं कि इंडिया का एक बहुत बड़ा ग्लोरी है कुश्ती एंड आर्चरी, शूटिंग सब, लेकिन स्विमिंग ऐसा एक गेम है जहाँ पे वर्ल्ड लेवल पे कुछ करना, मतलब फाइनल तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। आपने देखे मेरे इवेंट्स में ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गए एंड फिजिकली चैलेंज स्पोर्ट्स क्या होता है कोई नहीं जानता। इवन मेरा जो कोच है मिस्टर निहार अमीन, वन ऑफ द बेस्ट कोच इन इंडिया, वो भी ठीक से नहीं जानते थे व्हाट इज द पैरालंपिक स्पोर्ट्स। सो ये मेरा बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे सामने कि प्रशांत तुमको कुछ करना है जिससे इंडिया का पैरालंपिक स्पोर्ट्स प्रमोट हो, कि सबको नॉलेज में आए कि क्या है पैरालंपिक स्पोर्ट्स। टुडे एवरीवन नोज व्हाट इज पैरालंपिक स्पोर्ट्स। But in swimming in general, because if India is to ever really go up to the top in the Commonwealth Games, if we are to ever overtake Australia in the Commonwealth Games, we're going to have to win 5-10 gold medals in swimming as well. We can't do it without that. I mean, we can, but it will be tougher to do with getting only 1 medal in swimming. How can India improve its swimming? इंडिया कैन, आई थिंक, क्योंकि अभी जिस टाइप से प्रैक्टिस चल रहा है आपको मालूम है कि वीर धवल खार इज द यंगेस्ट स्विमर इन इंडिया। ही क्लॉक बिलो 49 सेकंड्स 100 मीटर फ्री स्टाइल एंड अगर आप वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से देखेंगे वो माइक्रो फ्रैक्शंस में ही बहुत डिफरेंस हो जाता है। 49 में ही शायद 100 स्विमर्स है 49 सेकंड में। आम जिंदगी में सेकंड्स के कोई मतलब ही नहीं रखता। आप उनको देख सकते हैं, मैं उनका शूटिंग देख रहा था, शायद 1 पॉइंट समथिंग से लीड करते करते 0.3 से उन्होंने लूज किया। तब मुझे लग रहा था, मैं सामने दूरदर्शन में बैठा था, तब देखा कि उनके चेहरे पे लग रहा था कि वो चेहरे से हार रहे। मुझे लगा कि मैं उनको बोलूँगा मैं आई एम वेरी स्मॉल फॉर यू। तो भी मुझे लगा जितना, क्योंकि मैंने 4 साल से प्लानिंग करके मेहनत करके इस जगह पे पहुंचा हूँ। मैं बहुत ही छोटा परिवार से था, मैं इस जगह पे पहुंचने का लायक भी नहीं था, सबने मुझे हेल्प किया, इस जगह पे मैं पहुंचा हूँ। Is that a real shock when sometimes you miss by that little? It's not. It wasn't a shock. When we are playing finals, we don't really calculate what the other person is doing. And जो मेरे shots थे, they were technically correct. The sights were perfect. The trigger was perfect. There was no way the shots could have gone stray. But I have been trying to change my technique. I've changed my technique 6 months back. The scores dropped. Now I'm coming up slowly. So it's going to pay me better in next 6 months. Okay, that's actually the perfect cue for me to take a very quick break at this time. Then when we come back very quickly, I wanted to ask all of you, where does India go from here? So much excitement, certainly. So much interest in sports. This used to be a country which used to only talk about cricket. Now everybody knows your names. All of you are household names in India. How do we take this thing forward for the Asian Games, for the Olympic Games? How do we get a full sporting culture in this country in games other than cricket? What is the future? We're going to turn our attention to that when we come back after this break.